Okay, good afternoon everyone. So today we are going to do our day and night makeup का demo. हम लोग दोनों demos parallelly करेंगे. So पहले we are going to focus on our skincare, which basically means cleansing, toning and moisturizing, CTM. So Vishali ma'am will come and she will guide you about the proper skincare routine and proper CTM. And from tomorrow, everyone make sure please, चाहे आपका practice हो चाहे demo हो, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे और सब लोग अपना अपना मेकअप करके बैठोगे. Make sure about this कि आप लोग अपना अपना मेकअप करके बैठ रहे हो. It's very important. Okay, सब लोग अपने अपना वीडियोस ऑन कर दो पहले तो. Everyone please on your videos. Bring on your chairs and सब लोग ऐसे बैठ जाओ. We will be doing CTM. We'll be doing CTM and हमारा demo आज. यहाँ से उठा लेना. यहाँ से थोड़ा सामान एडजस्ट कर लेना because मुझे वहाँ पे अपना वैनिटी रखना होगा. Hello everyone, I'm a skin expert from Avon, ठीक है? And in Kalyan also I'm working as a skincare trainer. So today I'm going to do CTMP. See, first I'm using cleanser of Anu. This is for fairness. Even you can use for detan. Okay. This is only 5 tips. For which skin type? This is for all skin type except oily skin. This is a foaming cleanser. See, like this. You have to just clean your face first. Why we have to use a cleanser? Because always cleanser is cleaning from deep pore. It cleans your impurities, okay? And what is the difference between face wash and cleanser? Face wash is diluted, so it will give you a dryness when you will wash. जब आप wash करते हो, तो आपकी skin face wash से dry हो जाती है, right? But अगर cleanser use करते हो, तो आपकी skin वैसी ही moisturize है. I just clean now. So this is different types, different age. I've got a CTMP. So if anybody wants for their skin, they can just send me the pics, and whatever skin problems, acne hai, pimple hai, whatever you have got the problems like blemishes, pigments, okay, you can send it to me. So I can solve your problems of your skin. You can see the skin now, it is becoming so clear. CTMP is very important before makeup. So your makeup will glow properly. Now I'll go for toner. You can see the nose, now it is shining because of the cleanser. Okay, cleanser लगाने से ही हुआ है.
अगर आप फेस वॉश से करते हो तो फेस वॉश आपको ड्राइनेस देगा, राइट? इसलिए आपको हमेशा क्लेंजर यूज करना है, टोनर ऐसे ऐसे टैप टैप करना है. दिस इज द टोनर आई एम शोइंग यू. See, this is the toner. This is the same regime toner, a new 360 fairness. See, okay. What does 360 means? 360 means age wise. You can go for that. ये क्वेश्चंस आप लोग को पूछने चाहिए, which I am asking. Any questions? आपको कुछ पूछना है about CTMP? You can ask me about skin also. Okay. Always put a toner. Why? Because when you are using cleanser, आप जब cleanser use करते हो तो आपके जो pores हैं वो open हो जाते हैं. तो you need to what? You need to minimize and shrink the pores. After that, for a moisturizer, I'm going to put a day cream. Okay. This all day creams are with SPF. Means आपको अलग से sunscreen लगाने की जरूरत नहीं है. इसमें SPF है, sun protection factor. See SPF. You can see it is written, and even night cream. So you can go for full CTMP. You can see it is written SPF. Right. Yes. Okay. रहता है ना? Yes, रहता है. Why? Because SPF 20 इसमें दिया है, because it is already a moisturizing cream. It is just giving you a protection. It is not a sunscreen. Understood? हमेशा Because you are going outside, no? हमेशा कम SPF वाला ही सनस्क्रीन लेना चाहिए. जितना ज्यादा SPF वाला सनस्क्रीन होगा उतना वो स्किन ब्लॉक कर देता है. सनब्लॉक बोलते हैं ना उसको. ज्यादा SPF वाले को सनब्लॉक. सनब्लॉक का मतलब वो स्किन के ऊपर जब लगाओगे पोर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे. पोर्स ब्लॉक हो गए फिर उसके बाद क्या होगा? पिंपल. हमेशा कम SPF वाला ही सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. SPF 15 इज मैक्सिमम. 15 to 20 इज मैक्सिमम. जो SPF 25 जाता है, SPF 30 जाता है, SPF 50 जाता है, वो प्रोटेक्शन तो ज्यादा देता है लेकिन स्किन को हार्म भी करता है साइड बाय साइड. सो मेक श्योर हमेशा कम SPF वाला ही सनस्क्रीन ले रहे हैं. इज इट डन? ओके. So CTM process is done. आप लोगों में से किसी को भी अगर पर्सनल स्किन केयर कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट वैशाली मैम को कांटेक्ट कर सकते हो. मैंने वैशाली मैम का नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है. वेट, व्हाट्स योर नाम? बोलो. खुद का नंबर है. It's iPhone. Okay, so any of you wanted personal consultancy about your own skin type, your own skin regime, regular skincare routine, makeup products, you can just contact Vaishali ma'am for any consultancy. Okay, okay. Okay, let's start our day and night makeup का demo. Let me adjust each and everything. फिर उसके बाद हम लोग हमारा day और night makeup का demo start करते हैं. For the student, what is basically today we are going to do day and night makeup. What is basically day or night makeup? What do you guys feel day or night makeup क्या होता है? आप लोग भी अभी तक पार्टीज में जाते थे, वेडिंग्स में जाते थे. आपके मेकअप में क्या चेंजेस आते थे जब आप लोग डे और नाइट मेकअप करते थे? So day में settle type का makeup होता है, light makeup, and night में we can For do your personal, अभी ये this is basically theory. What is day and night makeup? वो तो हो गया. आप लोग in your practical life, आप लोग कैसे अपना डे और नाइट मेकअप को अलग-अलग डिफाइन करते थे मुझे बताइए. I wanted to know कि आप लोग कैसे डे और नाइट मेकअप को डिफाइन करते थे आपकी लाइफ.
आप लोग नाइट पार्टीज में, नाइट नाइट वेडिंग्स में, आई मेकअप डार्क करते सर डे में सनलाइट है तो थोड़ा लाइट पड़ेगा। सब लोग पढ़ के आए हो घर से मस्त वाला। ओके, और रात में ये सब ऐसे वाली लाइट से थोड़ा हमारा तो आपको जो मेकअप डार्क करते हैं, थोड़ा डार्क करते हैं। बेसिकली यही बेसिक पॉइंट है ऑफ डे एंड नाइट मेकअप। व्हाट इज बेसिकली डे एंड नाइट मेकअप? द मेकअप जो हम लोग बहुत वेरी सटल काइंड ऑफ पे, बहुत सटल साइड पे हम लोग जिस मेकअप को करते हैं, वेरी नेचुरल साइड पे, ओन स्किन टाइप पे मेकअप को करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डे मेकअप। ठीक है, राइट इट डाउन, लिखते रहो साथ। एंड व्हाट इज बेसिकली नाइट मेकअप? नाइट मेकअप वो होता है जो हम लोग बेसिकली ऑन you can say over side पे करते हैं ना, over eye makeup, over loud lips, the base is somewhere bit heavier, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट मेकअप। ओके, डे में हम लोग नेचुरल एंड सटल मेकअप क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, हमारे फेस पे नेचुरल लाइट फॉल होती है, उस वजह से हम लोग डे में बहुत ही ज्यादा सटल मेकअप करते हैं। जब नेचुरल लाइट फेस पे फॉल होती है, वो बहुत ज्यादा वाला पॉप आउट हो जाता है मेकअप अगर ज्यादा करें। ओके, ऑन द सेम साइड व्हेन वी डू आवर नाइट मेकअप पे वी डोंट हैव दैट natural light. We don't have, we have this artificial light in our background, on our front side, on our face focusing. So these are not or natural lights, ये बहुत artificial lights है, तो इनमें वो हो जाता है गल पे। ठीक है, और वो उतना ज्यादा वाला ओवर नहीं दिखता। So this is the basic difference between day makeup and night makeup. Day में we carry very subtle eye makeup, subtle lips and all stuff, and on the night side we wear something very darker. कपड़ों में भी देखो, कपड़ों में भी we avoid wearing very चटक मटक वाले कपड़े in morning time, डे टाइम में, राइट? ऑन द सेम हम लोग नाइट पार्टीज में we can wear that चटक मटक वाले कपड़े we can wear, समझ में? बट अगेन ऑन द सेकंड पॉइंट, इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, हाउ डू यू प्रेफर, आपको कैसा चाहिए आपका? If you want day में भी वो चटक मटक वाला, you can prefer that also. If you want to go for very subtle, you can prefer that. Yeah, and may it just depends upon you, how you feel yourself, how you make yourself comfortable in what you are wearing. That's it. सबको समझ में आया what is basically day makeup and night makeup? So natural light का आपने क्या बोला? Natural light, sunlight. Sunlight. See, जब हमारे फेस पे natural light fall होती है ना, which is basically sunlight, sunlight में कभी भी ना अपना कैमरा ओपन नहीं खड़े होगा, जो आपकी ओरिजिनल स्किन होगी वो आपको सनलाइट में नजर आती है। अभी हम लोग बोलते हैं जब भी अपना फाउंडेशन खरीदने जाओ, मेक श्योर फाउंडेशन खरीदने से पहले सीटीएम करके जा रहे हो, उसके बाद नेचुरल लाइट में अपना फाउंडेशन शेड को सिलेक्ट करो। बिकॉज़ स्टूडियोज में क्या होता है, ये लाइट्स होती है, these लाइट्स जो कलर को ऑलरेडी मैच कर देती है, बैलेंस कर देती है स्किन को, राइट? जब हम नेचुरल लाइट में जाते हैं, नेचुरल लाइट में हमें पता चलता है हाउ माय स्किन टेक्सचर इज, हाउ माय स्किन कंप्लेक्शन इज। उसमें व्हाट इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट, समझ में आया सबको? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में ना आया हो? ओके, सो शुड वी कैरी ऑन विद द मेकअप स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट द डेमो? आप लोग हो क्लास में या नहीं हो? यस सर। बी एक्टिव इन द क्लास, आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए क्लास में, जैसे ऑफलाइन वालों की है। आप लोग वहां पे दर्शक बन के नहीं बैठोगे। You guys are supposed to participate in the class properly. Okay sir. Okay? Yes sir. So should we start the demo? Yes, sir. Yes sir. Let's start the demo. हेलो, हम लोग एक मेकअप करेंगे जिसमें हम लोग एक मेकअप को ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्रॉम डे टू नाइट। हाउ वी कैरी डे एंड हाउ वी कैरी नाइट, हम लोग एक मेकअप को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सर उस दिन आप हेलो सर, आप उस दिन आइवरी बोल रहे थे सर, वो प्रोडक्ट का नाम है या फिर कुछ अलग है? Ivory, हाँ सर, foundation shade. आइवरी एक शेड होता है which is basically used in mixing. आइवरी जो होता है ना ही वो पूल साइड पे होता है, ना ही वो वार्म साइड पे होता है। ठीक है, आइवरी ना ही पूल साइड पे होता है, ना ही वार्म साइड पे होता है। आइवरी बेसिकली व्हाइट होता है, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कलर मिक्सिंग में ऐड करते हैं कि अगर मेरे को फाउंडेशन पूरा करना है तो आइवरी मिक्स करते हैं। समझ में आया? आइवरी बेसिकली एक शेड है, आइवरी इज नॉट अ ब्रांड, आइवरी इज अ शेड। समझ में आया? लाइट सर, लाइट शेड ही बोलना चाहिए। सॉरी, लाइट शेड ही बोलना चाहिए सर उसको।
मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लाइट शेड बोलना चाहिए। इसको लाइट शेड नहीं, आइवरी को लाइट शेड तो नहीं बोल सकते, आइवरी को आइवरी बोलेंगे। अगर उसको लाइट शेड बोल देते तो उसका नाम आइवरी का रख देते। सर मुझे समझ में अभी भी नहीं आया। ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अमिता। ध्यान से समझो। What is अमिता यादव सर। सॉरी, अमिता यादव। ओके, अमिता अंडरस्टैंड। यादव। ओके यस ओके, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। जैसे हमारे क्रालन के फाउंडेशंस है FS45, FS27, FS28, ये पता है आपको? जी सर। वैसे ही क्रालन में आता है एक शेड आइवरी। ओके सर। ठीक है, उस शेड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेड को गोरा करने के लिए यूज करते हैं। वो डायरेक्टली हम लोग कभी भी स्किन पे नहीं लगाते। आइवरी को कभी भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाओगे। आइवरी को सिर्फ और सिर्फ किसी फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके ही लगाओगे। समझ में आया अभी? यस सर, अब समझ में आ गया। पहले ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए नहीं आया। पैलेट में रहता है ये क्या आप अगर पैलेट में रहता है तो आपको अलग से लेना पड़ता है। अगर एफएस का पैलेट है आपका तो एफएस के पैलेट में नहीं है। फिर अलग में भी पैलेट में डिफरेंसेस आते हैं। दिल्ली आता है, दिल्ली 1 आता है, दिल्ली 2 आता है, दिल्ली 3 आता है, मुंबई आता है, मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, एफएस। अगर आपके पास एफएस है तो एफएस में नहीं है, मुंबई 2 में था। मुंबई 2 में होता है लेकिन एफएस में नहीं होता, एफएस में अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, मुंबई 2 में चाइनीज का कैरेक्टर ऑलरेडी होता है, बट लेकिन एफएस में नहीं होता, एफएस में लेना पड़ता है। अंडरस्टूड? So should we start? अब अपने अपने नोट्स लिखते रहना साइड बाय साइड। Okay, let's start the demo. Today we are going to do हमारा day and night makeup, and आज we are going to cover one hairdo, which is हमारा hair stick. How we do our hair stick. ठीक है? नहीं come back. Okay, CTM is almost done. मैं moisturizing फिर भी दोबारा करने वाला हूँ because I feel somewhere dry. What's the skin type? You might be somewhere combination. She's not somewhere oily. If she would be oily, she would get a lot of pimples and all. अभी moisturizer लगाया, moisturizer लगाने के बाद एक्स में ऑयल आना चाहिए था। She is not oily. मुझे दोबारा moisturizer करने की जरूरत नहीं नीड हो रहा है। What's your skin type? Just open my hand. And then pass me moisturizer. How we go for eye makeup? अरे sorry. नहीं करोगे। सिद्धांत मुझे टिश्यू पेपर तो मेरे को ड्राई टिश्यू करवा दे। वो ड्राई टिश्यू है। Let's just apply moisturizer on her face. Her CTM is approximately done. उसका CTM हो चुका है, but then also I feel somewhere dry. अगर मैं उसको directly foundation लगा दूँगा तो उस टाइम के बाद उसके foundation में cracks आने से होता है। ठीक है? To make it look natural and flawless, मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़ा सा moisturizer दूँगा. I'm not going to take too much of it because already CTM has been done. Okay. With my hands, I'm just going to warm it up. अच्छे से warm करेंगे उसको plate के ऊपर. और कभी भी आप लोग क्या कर रहे हो कि people are just like this, फिर उसको घिस रहे हो अच्छे से. Don't do this thing. मैं from yesterday I am including these things. From tomorrow itself I'll make sure कि मैं बहुत ज़्यादा डांटने वाला हूँ. It's been 4th time मैं बोल रहा हूँ. Just follow the steps I am following. किसी को देखो, पता नहीं किसको देखा था, मैंने कल ही देखा था. Just taking the foundation और पूरे मुंह पे फाउंडेशन ऐसे डॉट डॉट में लगा दिया. It's very wrong technique of doing.
जस्ट नोटिस मैं क्या चीजें कर रहा हूँ एंड हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। आज देख लेना हाउ आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ एंड माई क्लाइंट स्किन और उन चीजों को फॉलो करो। चेंज योर हैबिट। अगर आप लोग वैसे पहले करते थे नाउ चेंज इट। जूम इन ऑन माय फेस। just ask the primer. Okay, next after moisturizer I am going for my primer. मैंने अपना silicon based primer उठाया and उसको अपनी skin plate पे रखा and I am now just going to apply it on the concerning areas. और अंडर आइज पे कभी भी प्राइमर को नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा क्रीजिंग होती है। जिनकी स्किन में नॉर्मली पोर्स नहीं है हम लोग उनको ऐसे लगाएंगे और जिनकी स्किन पे पोर्स है पोर्स को फिल करने के लिए हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अंडरस्टूड? कैसे लगाओगे प्राइमर? फॉर द पीपल जिनका स्किन बिल्कुल क्लियर है, हम लोग ने सिर्फ एक बॉल क्रिएट करने के लिए प्राइमर लगाया तो उसको नॉर्मली जैसे लगाते हो क्रीम को वैसे लगाओगे, बट फॉर द पीपल हु आर हैविंग ओपन पोर्स और देयर स्किन उनको हम लोग ऐसे लगाएंगे। समझ में आया? So the primer is of which brand? Primer I am using from Urban Color. It's silicone based primer which is for recommended for all skin types. ये वाला मे भी आप लोगों सबके पास है ये वाला प्राइमर। लव लेक ऑन सी। ये वाला सर आप जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका अगर फोटो अगर ग्रुप में डाल दे तो आप लोग प्रोडक्ट्स को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करके भेज देता हूँ। जस्ट नोट डाउन द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ। ओके अंडरस्टूड? यस मैंने लिख पास किया, मैं इस पे लगाते ताकि इसके बाद जब मैं मैट लिपस्टिक लगाऊं इस पे स्पॉन्टेड, इसके बाद जब मैं मैट लिपस्टिक लगाऊं तो क्रैक ना आए। मेक श्योर सब चीजों को पहले ही करके जा रहे हैं। सर ये क्या है? इट्स लिप बाम। ओके, लेट्स चेक आवर फाउंडेशन शेड। गिव मी दैट। आई यूज लिक्विड फाउंडेशन। ओके, मैंने लिक्विड फाउंडेशन लिया था लिखा। जब भी आप लोग लिक्विड फाउंडेशन लोगे मेक श्योर उसको अच्छे से शेक कर रहे हो, उसको बॉटल के अंदर ही अच्छे से शेक कर रहे हो, उसके बाद उसको यूज कर रहे हो। वेयर इज माय स्पीड प्लेट? ये आपको बार-बार उठना पड़ेगा। वैसे जो डे मेकअप के लिए जाना मैं क्रालन का, अगर मैं क्रालन का यूज करता हूँ, क्रालन का क्या है हाई कवरेज है। मुझे किसी के साथ जाना है नेचुरल कवरेज के साथ, तो मैं नेचुरल कवरेज से जा रहा हूं तो मैं कौन सा यूज करूंगा? लिक्विड और बस लॉजिक। मैंने 02 शेड उठाया लिका का एंड लेट्स चेक इट आउट अगर जाता है स्किन पे। सेम प्रोसेस है जैसे आप लोग क्रालन का चेक करते हो। बॉम्ब किया स्टीक प्लेट के ऊपर एंड जस्ट हम लोग जॉ लाइन के ऊपर स्वॉच करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और शेड लिया फ्लिका का इन द शेड 03, उसको अच्छे से शेक किया एंड उसको भी मैंने अपनी स्टीक प्लेट के ऊपर डाला। मेरे और भी ओके, इसके बाद मैंने अपना शेड उठाया 05
उसको भी मैंने अपनी सीट के ऊपर डाल दिया, इसको भी वार्म किया एंड लेट्स सी। ओके, इफ आई सी 05 समवेयर मैच कर रहा है स्किन को, बट समवेयर थोड़ा सा एक ब्लैकनेस देगा अगर मैं पूरे फेस पे देखूंगा। ओके, यूजिंग माय लॉजिक, मैंने लॉजिक यूज किया। मेरे पास कौन कौन सा शेड है? मेरे पास 02 है, 03 है और 05 है। कौन सा नहीं है? 04 नहीं है, which means अगर मैं 03 और 05 को मिक्स कर दूंगा तो मेरा कौन सा शेड बन जाएगा? 04 इज वन हो। ठीक है, ध्यान से देखो, 02 यूज किया, 02 मुझे बहुत गोरा लग रहा है। इसके बाद मैंने 03 उठाया, 03 लगाया, सब पर हल्का सा एक गोरा इफेक्ट दे रहा है। 04 नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव 04। और कौन सा मेरे पास? 05। 05 इज समवेयर डार्कर। तो अगर मैं 03 और 05 को मिक्स कर दूंगा इक्वल अमाउंट में, मेरा कौन सा शेड बन जाएगा? 04 एंड 04 विल गो ऑन। समझ में आया? ख्यालन का भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, अगर दो शेड के बीच में का शेड बन रहा है तो दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करो और शेड करो। समझ में आया? ओके, नाउ 05 एंड माय 03 लिया मैंने और 03 के अंदर हल्का सा मिक्स किया। तो लेकिन अभी क्या हमने 02 और 03 किया है। वो कंसीलर है, फाउंडेशन नहीं है, वो कंसीलर है, इट्स फाउंडेशन। ध्यान से किट को देखो, किट खोलते नहीं हो तो कैसे पता चलेगा? It is somewhere match. पहले कंटिन्यू, ये पूरा क्वेश्चन just think for that order. Even if you want to go for challenge, आप लोग challenge के साथ ही जाते हैं। इसमें पर्सनल चॉइस आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है? आप लोग अगर हेवी बेस करना चाहते हो challenge के ऊपर ये भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन। अंडरस्टूड? हेलो सर। यस सर एवॉन का फाउंडेशन भी हम लगा सकते हैं ना, मिक्स करके ये वाला? आप करते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। ओके, It's your personal choice. You can use anything you wanted to. Excuse me, sir. Just listen to me. सर 02 और 05 वो 03 मिक्स करके लगा रहे हो आप? I am mixing the colors. ओके सर। दो शेड्स को मिक्स करके लगा रहा हूँ। इसमें ऑरेंज कलर है, आप खड़े रहो। वो पड़ा ये थोड़ा लाइट है ना। ओके, लेट्स कलर करेक्ट योर फेस। मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लिया एंड जो मुझे कंसर्निंग एरियाज लगते हैं डार्क एरिया उसके अंदर ये मैंने ब्लैक है। जो कंसर्निंग एरियाज है, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माय कंसर्निंग एरियाज। कंसर्निंग एरियाज मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है। मैंने लिया अपना कलर। आपको क्या क्या लगता है कौन कौन से एरिया पे रिक्वायर्ड है? एक एक जन करके बोलो, एक एरिया बोलना, बस सिर्फ एक एरिया बोलना। अंडरलाइन आईलिड्स, आप बोलो। फोरहेड, व्हाट डू यू से? अंडरआइज हो गया, अंडरआइज हो गया, फोरहेड हो गया और आईलिड्स भी हो गए। अगला माउंटी एरिया, या इतना एरिया जो पिगमेंटेड है जहां पे रिक्वायर्ड। ठीक है, सो ग्रीन कलर करेक्टर का नीड नहीं है, जस्ट ऑरेंज कलर करेक्टर का नीड है। आई एम जस्ट टेकिंग माय ऑरेंज कलर करेक्टर एंड लुक अप और डैबिंग मोशन में आई एम जस्ट गोइंग टू डैब। कभी भी ब्रश से भी लगाओगे यू विल नेवर ड्रैग द प्रोडक्ट। कभी भी प्रोडक्ट को ड्रैग नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज ड्रैग द प्रोडक्ट।
और मेकअप में एक चीज को ध्यान से रखो, लेस इज मोर, मोर इज बकवास, लेस इज मोर, बस जितना कम उतना ज्यादा। आई एम यूजिंग माई ब्रश इन द शेड 019, इट्स फ्लैट ब्रश, इट्स छोटा फ्लैट ब्रश। अब एक लॉजिक लगाओ, बड़े फ्लैट ब्रश के साथ मैं अंडर आइज के नीचे काम कर सकता हूँ क्या? जब मुझे कंसर्निंग एरियाज में काम करना है तो मैं हमेशा छोटे ब्रश के साथ काम करता हूँ। तो हल्का जो फूट है from tomorrow you guys will start bringing your models. तो डे नाइट मेकअप अपने ऊपर तो नहीं करोगे, स्टूडेंट टू डे नाइट मेकअप अपने ऊपर। From Monday everyone will start bringing your models. मैंने अपना ब्यूटी टेंडर लिया, इट्स डन ब्यूटी टेंडर, ठीक है। तो एक दूसरे पे लाइक बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम। आप लोग अपना सेल्फ मेकअप में तो 2 घंटे लगाते हो, डे नाइट मेकअप में 2 मेकअप एक साथ करोगे 8 घंटे मतलब नहीं। तो देखो और आप लोगों का ग्रुप इज मेंट फॉर सेंडिंग फोटोग्राफ्स। आप लोग जो होम पे प्रैक्टिस करते हो एंड आप लोग इट्स वेरी, कौन कौन यहाँ पे मदर है और किन किन के किड्स स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल तो जाते हैं ना। आप लोग अपने किड्स को बोलते हो स्कूल से घर पे आके काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए? आप लोग कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो अपना होमवर्क? हाँ बहाना चाहिए बस। मैंने ऑरेंज कलर लेटर लिया, एक अमाउंट तक ब्लेंड करोगे, पूरा खत्म मत कर देना, ये हो गया समथिंग। तो इतना इतना ब्लेंड कर देता कि वो कलर करेक्टर उड़ ही गया था, कलर करेक्टर ही खत्म, और वो दोबारा से आईलिड्स में लगी थी ग्रे। इस वजह से लग रही थी कि कलर करेक्टर लगाया भी और उसको ब्लेंड ऐसे करते कि वो खत्म ही हो गया। समझ में आया? Okay. Let's go to the foundation. For foundation application, I am going to use my flat brush. For applying my foundation, मैंने अपना flat brush, बड़े वाला flat brush लिया है in the shade 020. अब मुझे पूरे फेस पे काम करना है, कंसर्निंग एरियाज पे काम नहीं करना, तो I can go with my बड़ा flat brush 020. It's from Febina. It's Febina का ब्रश है। आप लोगों को जो किट में मिलेगा वो Febina का पर्सनल ब्रश है। अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन नहीं लगाओ, छोटे छोटे एरिया में काम करोगे। और अगर कल से किसने लगाया ना डॉट डॉट करके फाउंडेशन, फिर देखना अपने खुद के ऊपर भी। एंड फ्रॉम टुमारो स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम। जो 12 बजे से लेट आया अपना टाइम पे फाउंडेशन भी कैसे लगाओगे?
टैप करके, ब्लेंड भी टैप करके करोगे और अप्लाई भी टैप करके करोगे। मैंने पहले इस एरिया पे काम किया, नीचे वाले एरिया पे आया। और जब भी यू आर मिक्सिंग टू फाउंडेशंस ना, मेक श्योर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स करो, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन इज ना, एक बार जो शेड बन जाता है मिक्स करने के बाद, दूसरी बार में वही सेम शेड बनना बहुत मुश्किल है। तो मेक श्योर जब भी मिक्स करके फाउंडेशन लगा रहे हो, एक बार में ज्यादा शेड बना लो, उसके बाद फेस हो जाएगा चलेगा, लेकिन बाद में जब होगा ना, फेस विल लुक डिफरेंट एंड गर्दन विल लुक डिफरेंट। तो मेक श्योर जब भी मिक्सिंग करके फाउंडेशन लगा रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में इसको ब्लेंड करो और ज्यादा क्वांटिटी में इसको मिक्स करो। किया मैंने, ओके लुक एट फेस, मैंने सिर्फ एक साइड पे फाउंडेशन लगाया, इधर भी सब चीज हाइड हो चुकी है। समझ में आया? Yes. at a time पूरा फिक्स है, तेरे पूरा क्यों नहीं है? It's liquid foundation, liquid है ये। दूसरी बात ये, लिक्विड का बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एसी में बैठ के मेकअप करोगे, अभी तो वी आर नॉट यूजिंग एसी राइट, एसी में बैठ के काम करोगे, फैन के नीचे बैठ के काम करोगे, इतने को ब्लेंड करोगे ना, इतना आगे तब तक ड्राई हो जाएगा, उसके बाद तो ब्लेंड ही नहीं होगा। समझ में आया? क्वेश्चन वाज गुड बट थोड़ा लॉजिकल है। और दूसरी बात ये, क्लाइंट का थिंक यार इसने तो फाउंडेशन से ही भर दिया, एक बार में पूरे फेस पे लगा दोगे ना, इतना ही फाउंडेशन एक बार में पूरे फेस पे लगा दोगे, पूरे फाउंडेशन से भर दिया इसने, और इसी फाउंडेशन को पोर्शन पे लगाओगे, मुझे कितना कम कम फाउंडेशन लगा है, क्लाइंट के दिमाग से निकलो। इसके पहले आप लोग क्लाइंट जितने भी सवाल है यहाँ पे कर लो, अब क्योंकि पहले टेबल की उस साइड होते थे, अब टेबल की साइड होने वाले, जितने भी सवाल जवाब होते थे उस टाइम पे, सब सवाल जवाब यहाँ पे आके खत्म करके जाओ। अंडरस्टूड? नहीं, डायरेक्ट कंसीलर लगाओ, ज्यादा ज्यादा वाला उसको यूज मत करो, ठीक है? कितनी कंसीलर, कंसीलर का शेड कितना शेड लाइटर होना चाहिए फाउंडेशन से? फाउंडेशन कौन सा यूज किया मैंने? 0 कंसीलर शुड बी, समझ में आया? 02 लगाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा। फाउंडेशन वाज 04 तो कंसीलर शुड बी 03। मैंने अपना 03 लिया, फ्रॉम द सेम ब्रांड लिखा ऊपर, एंड जहां जहां पे इट्स रिक्वायर्ड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माय कंसीलर ऑन। These are the areas, जिन एरियाज पे हम लोग क्या लगाते हैं हमारा, एंड यही राइट टेक्निक है फॉर अप्लाइंग द कंसीलर। समझ में आया? जो कंसर्निंग एरिया पे लगाओगे सर, जितने एरिया पे मैंने कंसीलर लगाया उतने एरिया पे उसको ब्लेंड करोगे। अभी आई विल नॉट डू क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर, ठीक है, बिकॉज़ इट्स डे मेकअप, हम लोग क्रीम टू क्रीम पाउडर टू पाउडर नहीं करेंगे। इवन इन नाइट इफ यू वांट मी टू गो फॉर, डिपेंडिंग अपॉन ओकेजन राइट,
इस पे फाउंडेशन नहीं लगाओगे, वही कंसीलर जो मैंने नीचे लगाया था उसी कंसीलर से इसको ऊपर पे टैप कर दो। ओके, देयर इज वन मोर हैक जो मैं बता देता हूं इसको, बट लेकिन मैं खुद पर्सनली इसको नहीं यूज करता। लेट मी टेल यू वन हैक। समटाइम्स व्हाट हैपन इज ना, हम लोग सब कर देते हैं कंसीलिंग भी करके, बट देन आल्सो अंडर आई में वो वाइट नहीं हो पाता। दिस वन थिंग, लिक्विड कंसीलर लो, लिक्विड कंसीलर को कंसीलिंग एरियाज पे लगाओ और उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई हो, 50% ड्राई हो, 50% जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद उसको ब्लेंड करो। उसको उसके बाद क्यों ब्लेंड करो, क्योंकि उसका कवरेज बढ़ जाएगा, एक तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और जो है वो अंडर आई जो है वो इवनली हाइड हो जाएगी। इट्स अ हैक बट आई यूजुअली डोंट, बता दिया आप लोगों को इन केस अगर ना हो तो, बट आई यूजुअली डोंट यूज इट। इफ यू गाइस वांट इट यू कैन यूज इट। तो सिर्फ 50% ट्राई हो। फॉर पॉइंट इसके ऊपर तो इसके ऊपर नीचे काम करो। कितने यूज प्रॉब्लम, मेक श्योर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये कौन सा टीयर 2, टीयर 2? टीयर 2 नहीं है। सर कंसीलर लगाने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर से एक बार अप्लाई कीजिए। लेकिन उसको तो लूज पाउडर नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना। मुझे अगर अंडर आई फिर से मेरे को आई नहीं करना, मुझे आई को फिर करना से है। कंसीलर लगा सकते हैं। सर ने अभी बताया ना। हाँ। मुझे आई मेकअप करना है, इसलिए मैंने लूज पाउडर ले लिया ताकि जो भी फॉल आउट हो मेरी लूज पाउडर को, जब मैं लूज पाउडर को रिमूव करूं तो फॉल आउट भी रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ विद माय ब्रश आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द लूज पाउडर ऑन माय फुल। मैंने अपना ब्रश लिया, ब्रश के ऊपर लिया, एक्सेस पे डैब ऑफ किया एंड dabbing motion में I am just going to dab it all over my face. You are late. Why you are late? Make it, make it over till tomorrow. आज चल गया, make it from tomorrow it will not go. You are supposed to be on the time. Now let's start eye makeup. Eye makeup for basic day. ठीक है? कितना आई शेडो डाला कितना है आई शेडो? कौन सा? लेगा। ये तीन है मेरे पास, तीन हो गए। She is wearing something black, तो black के साथ कुछ भी चल जाता है। ठीक है, with black I am just going to pair some pinkish color. ठीक है, मैं पिंक कलर को कॉम्प्लीमेंट करने वाला हूँ विद ब्लैक। ओके, मैंने अपना आई शेडो पैलेट उठाया एंड माय ब्रश इन द शेड 009, बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है, बड़ा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया मैंने और इसके अंदर से मैंने अपना न्यू कलर उठाया, न्यू पिंक, ये दो लिए, एक्सेस पे डैब ऑफ किया एंड मेक श्योर दोनों आईज में पैरेलली काम कर रहे हैं। When you are done with the base, पहले अगर बेस का डालो तो आप अपने हाथ में ये पफ पहनो, ठीक है, अदरवाइज फेस पे जो है पैच आएगा। Let's go. I'm starting from the back side. सब लोग ध्यान से देखना how my hands are moving and how my brushes are moving and how my where I'm placing my color. मैंने दिया
अपना न्यू पिंक कलर एंड स्ट्रेच किया अपनी ब्राउज को. उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू द इनर कॉर्नर. आउटर कॉर्नर में इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर में इनर कॉर्नर. समझ में आया मैंने कैसे किया? अपना कलर लिया अपने ब्रश पे, ऐसे थोड़ा रब किया. हमेशा ब्रश को पीछे से पकड़ो. ऑलवेज होल्ड ब्रश फ्रॉम बैक और बहुत हल्के हाथ, ताकि आपका ब्रश जो है वो स्मूथली मूव कर सके. जब इसको यहाँ से पकड़ोगे ना वो मूव कर पाएगा, और जब एक पे लगा दोगे ना पे, तो वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो मेक श्योर हमेशा उसको पीछे से पकड़ रहे हो और कम कलर ले रहे हो, और उसको डैप जरूर कर रहे हो. उसको डैप किया, यहाँ पे पकड़ा एंड is it visible to everyone how my hands are moving? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? मैंने अपने दो न्यू कलर्स को दिया सेम पैलेट. अगेन एक्सेस को डैप अप किया, सेम गोइंग विद दिस हैंड. थोड़ा थोड़ा करके कलर 3 बार ले लो, लेकिन एक बार करके जब एक साथ कलर को प्लेस कर दोगे ना, फिर वो उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी. तो मेक श्योर थोड़ा थोड़ा करके कलर को उठा दें. सेम वही न्यू कलर लिया, पूरी आईज में मैंने क्या दिया? न्यू पिंक कलर. फ्रॉम सेम पैलेट मैंने हल्का सा डार्क कलर उठाया. हमेशा मैंने डे 1 पे समझाया था, लाइट कलर जो है वो इनर कॉर्नर की साइड पे रहेंगे, जो भी डार्क कलर्स रहेंगे वो कहां रहेंगे? आउटर. अब मैंने डार्क कलर उठाया, एक्सेस को डैब अप किया, होल्ड दिस. अब इस कलर को मैं कहां पे लगाऊंगा? इनर पे या आउटर पे? आउटर. व्हाट विल आई डू इज, मैंने सेम ब्रश लिया और इसको मैंने आउटर में लगा दिया. समझ में आया? मैंने सेम डार्क कलर लिया उसी पैलेट में से, इसको हल्का सा मैंने आउटर कॉर्नर में लगा दिया और उसको इनवर्ड में हल्का हल्का दे दिया है स्मच. दैट्स इट. समझ में आया? सिर्फ मैंने दो कलर के साथ प्ले किया है, वन इज न्यू एंड वन इज डार्क. तो मैं इफ शी इज वेयरिंग समथिंग ब्लैक, मैं इसके साथ ब्राउन पे भी जा सकता हूं. मैंने ब्राउन इसलिए नहीं उठाया बिकॉज़ ब्राउन इज समवेयर सेकेंडरी कलर. दिस इज आल्सो सेकेंडरी कलर, बट ये न्यूड में है. ब्राउन चाहे न्यूड हो चाहे डार्क हो, दोनों डार्कर ही होते हैं. और डार्कर कलर्स को पोस्ट टाइम में हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है. लाइट कलर्स की ब्लेंडिंग इजीली हो जाती है, बट डार्क कलर की ब्लेंडिंग इजीली नहीं होती. डार्कर कलर्स को जितना भी ब्लेंड करोगे वो पैच नजर आता है. ठीक है, आप लोग वैसे भी फ्रेशर, तो आप लोग इतना ब्लेंड करोगे नहीं करोगे आई डोंट नो. तो इसलिए मैंने लाइट कलर के साथ चला पहले, ताकि लाइट कलर को ब्लेंड करना है, उसके बाद डार्क कलर को पकड़ो. ठीक है, मैं मोनोक्रोमैटिक लुक नहीं जा रहा हूं, आई एम यूजिंग मोनोक्रोमैटिक कलर्स. हेलो सर. जी बोलिए. सेरोटोप भी लगा सकते हैं इससे पहले? हाँ लगा सकते हो. ओके. ठीक है, मैंने लिया. इसके बाद गिफ्ट में कार्निवल का कार्ड. व्हाइट कलर में किस तरह ओके. फ्रॉम नाउ फ्रॉम दिस पैलेट, इस पैलेट के अंदर से मैंने हल्का सा एक व्हाइट कलर लिया टू मेक अ ट्रांजिशन थोड़ा बहुत. क्रॉलर, इट्स फ्रॉम क्रॉलर. मैंने लिया अपना पैलेट एंड उसके अंदर मैंने अपना व्हाइट कलर उठाया, एक्सेस को डैप आउट किया एंड जस्ट प्लेसिंग इट इन द साइड. मैंने क्या किया, सेंटर में व्हाइट कलर को प्लेस कर दिया. Green and नीचे. या प्लीज लाइन के नीचे.
क्योंकि इंडिया गोइंग फॉर वेरी बेसिक ना, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन बेसिक। इसको इतना ज्यादा बोर्ड पे नहीं मारते हैं, बेसिक चलो उसके बाद चलते हैं। क्रीज के अंदर उसको मैंने लगाया, बस क्रीज के अंदर लगाया और कुछ with my same palette लिखा का जो लाइट और डार्क कलर दिया था लेके वो हल्का सा आउटपुट में बाकी सिर्फ जो व्हाइट कलर है वो सिर्फ सेंटर में लिखा। ठीक है, आप लोग इसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स योर ओन क्रिएशन, यू कैन क्रिएट इट एज यू वांट इट टू, इट्स योर ओन क्रिएशन। इसके अंदर अगर इसको शिमर लगाना है आप लोग शिमर भी लगा सकते हो, किसी को इसको मैट रखना है इसको मैट भी रख सकते हो, इफ यू वांट टू प्लेस दिस शिमर सेंटर में आप शिमर भी लगा सकते हो, इफ यू वांट टू मेक इट मैट हो भी यू कैन मेक इट मैट आल्सो। ठीक है, मैंने व्हाइट के ऊपर हल्का सा व्हाइट शिमर करके इसका एनहांस को पॉप। ओके, लेट्स गो फॉर आईलाइनर। वो लिक्विड लाइनर आप लोग कब से लगा रहे हो? कब से ना? लेट्स लर्न आईलाइनर। फ्रॉम द पैलेट हम लोग आज आईलाइनर लगाएंगे, स्मज आईलाइनर लगाना है विद माय ब्रश नंबर 017। मैंने अपना ब्लैक कलर लिया, एक्सिस पर टैप करके ब्लैक कलर को बहुत संभाल के यूज करना है, वेरी केयरफुली ब्लैक कलर को यूज करोगे बिकॉज़ ब्लैक कलर का स्टेन बहुत डार्क होता है। जैसे आप लोग अपना लिक्विड लाइनर लगाते थे लैश लाइन के ऊपर, सेम वैसी पाउडर लाइनर लगाओ लैश लाइन के ऊपर। लगाइए एक लाइन पाउडर से। अब क्या करोगे, जस्ट उसको ऐसे एक पॉइंटेड ब्रश के साथ, ऐसा वाला पॉइंटेड ब्रश, उसको हल्का हल्का क्या कर दोगे स्मच ऊपर से। क्या बन गया? स्मच लाइन, पाउडर स्मच लाइन। अब से वो लिक्विड लाइनर से पतली पतली रिंग्स बनाना बंद। नाउ स्टार्ट यूजिंग द लाइनर व्हिच आई एम डूइंग। ठीक है, ठीक है, सेम ब्रश पे एंड सेम द प्रोसेस, जैसे इधर लगाया वैसे हम लोग इधर लगाएंगे। जीरो कि अगर आप लोग फेबेरा के ब्रशेस ले लो तभी ये शेड मैच होगा, अदरवाइज शेड विल नॉट मैच। देख लो एक बार पास में आके सब लोग। समझ में आया? ये वाला मुझे हमेशा आईलाइनर कैसे ठीक है इनको क्लासिफाई करोगे, जब भी आप आईलाइनर को लगाना सेंटर से स्टार्ट करोगे ना, ऑलवेज यू स्टार्ट अप्लाइंग आईलाइनर फ्रॉम सेंटर। यहाँ से सेंटर से जैसे जैसे लाइनर स्टार्ट करोगे ना लगाना, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कहाँ से ठीक रखना है, आपको कहाँ से ठीक रखना है। जब आप लोग फ्रंट से स्टार्ट कर दोगे ना, जैसा फ्रंट पे रखा वैसे ही एंड में रखना पड़ेगा, बट जब आप सेंटर से स्टार्ट करते हो इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ, ठीक रखना है उसको ठीक रखना।
जब भी सेंटर से अप्लाई करोगे आपकी मर्जी, आपको थिक रखना है, थिन रखना है, कहाँ से भी, पीछे से थिन रखना है, आगे से थिक रखना है, आगे से थिन रखना है। बट अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और आगे से मोटा दे दिया तो पीछे तक मोटा जाएगा, और आगे से पतला दे तो पीछे तक पतला जाएगा। जब सेंटर से स्टार्ट करोगे मोटा रखो, पतला रखो, इससे कोर्स समझ में आया? ऑनलाइन वालों को सब क्लियर है? होगा ऑलरेडी। ओके, with the same process मेरा same palette के साथ okay, with this the same palette जो कलर्स पहले उठाए थे, न्यू कलर सेम कलर उठाए, तो देखो लोअर लैश लाइन में भी। जब तक लोअर लैश लाइन में काम नहीं करोगे आई मेकअप विल बी अधूरा। मैंने ब्रश किया 009। For day makeup we are going with very soft colors। अब मैंने हल्का सा डार्क कलर उठाया, तो मैंने ब्लू उठाया था। कौन सा काजल लगाए? सर ब्रश का सेट नंबर क्या था? 009। 009। ओके। क्रीम लिपस्टिक को कैसे भी यूज कर सकते हैं, काजल, ब्लशर, लिपस्टिक, आई शैडो का बेस, कैसे भी यूज कर सकते हैं आप अपनी क्रीम लिपस्टिक को। बट मैट लिपस्टिक को कभी मत यूज करना। मैट लिपस्टिक को आप यूज करोगे ड्राई आउट हो जाएगी। मेक श्योर मैट लिपस्टिक नहीं यूज कर रहे हो। It's lipstick. It's carry on lipstick. ठीक है, for the lipstick daytime we'll go for very nude lipstick। बहुत न्यू लिपस्टिक के साथ जाओगे, मेरा बेस पे इट्स नॉट क्या तो देखा। Okay, let's go for the lipstick। For lipstick हम लोग बहुत न्यूड कलर के साथ जाएंगे। We go for a very nude color। करेंगे ना? We'll do everything। Okay, should we go for this lip color? ये dual lip color है। इस lip color के साथ जाना चाहिए या फिर इस lip color के साथ? It's bit dark। ये नहीं, ये let's apply lipstick। For lipstick I'm going to use my lip brush। मैं अपना लिपस्टिक का ब्रश उठाया। लिपस्टिक कैसे लगाओगे ध्यान से देखना। हाउ टू अप्लाई लिपस्टिक बहुत ध्यान से देखना। नेचुरल लिप का जो शेप है उसको उसी शेप में रखो।
तो क्लाइंट को ये कलर आपने दिया है, क्लाइंट को लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क है, तो लाइट थोड़ा करना है, कैसे करें? नहीं डार्क कलर तो एटलीस्ट आइवरी तो मिक्स करने से लाइट न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल। See, client will not come and मुझे डे मेकअप दो, मुझे नाइट मेकअप। It's we are just teaching you technical terms कि दिन में कैसे करते हैं, रात में कैसे करते हैं। Client कभी आपके पास ऐसा नहीं आएगा मेरे को डे मेकअप चाहिए, मेरे को एवरीडे मेकअप चाहिए। Client कभी ऐसा नहीं आएगा। Client will just say मुझे पार्टी में जाना है, सुबह रात को कैसे भी मुझे मेकअप चाहिए। It's now ये सिर्फ आपके प्रिंसिपल्स पढ़ाने के लिए, आपके स्किल्स बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि डे में हम लोग किस कंसर्न से बात करते हैं, नाइट में किस कंसर्न से बात करते हैं। It's just this। और क्लाइंट से पूछो which lipstick you want। मैंने उससे पूछा ना कौन सा लिपस्टिक चाहिए, अपना चॉइस बता दो, 2 या 3 या 5 या 6 या 10 या 20, ये मेरी चॉइस है, तुझे कौन सा चाहिए। पूछो तो उसने मेरे को पता मुझे चाहिए, मैं दे दूंगा। Your client should be comfortable, your client should be satisfied with your service, that's it। ठीक है, दिस इज जस्ट माय लिपस्टिक डन। अभी मेरा पूरा बेस बचा है, सिर्फ मैंने क्या किया, पाउडर किया था इसको। अभी मुझे कॉन्टूर भी करना है, ब्लशर भी करना है, हाईलाइट भी करना है। लेट्स स्विच टू द कॉन्टूर ब्लश एंड हाईलाइट। गिव मी द वो दूसरे ब्रांड का ब्लश, इसमें से है लिपस्टिक का ब्लश। ये ब्लश है क्या 24 है ये टोटल, ये रहा 003 is your lipstick brush। Okay, let's go for contouring। Okay, मैंने अपना contour किया, ठीक है, ब्रश पे किया, ऐसे से डैब ऑफ किया, और बिल्कुल वही contouring है। ये हेयर को पीछे किया अच्छे से, स्टार्टिंग फ्रॉम वर ईयर, कहाँ तक लेंगे उसको, ब्राउन के आस में। समझ में आया? सेम विद दिस साइड। नोज कॉन्टूर के लिए हमेशा एक छोटा ब्रश लो, किया मैंने अपना कॉन्टूर के बाद नोज कॉन्टूर। जब भी नोज कॉन्टूर करोगे हमेशा पीछे आओ, तो फेस कॉन्टूर करते हो ऐसे रहते हो, नोज कॉन्टूर करते हुए हमेशा ऐसे पीछे आओगे ताकि स्ट्रेट लाइन आपको नजर आए। यहाँ से किया तो कहाँ जोड़ोगे, अपनी ब्राउ, ठीक है, इसको ब्लेंड किया और इसको ब्लेंड करके कहाँ जोड़ोगे, अपने ब्राउज, आईब्राउज के अंदर जॉइन करोगे। सेम विल डू विद दिस, ये और उसको अपनी ब्राउज के अंदर जॉइन करोगे। Some people do that harsh, इतना ज़्यादा harsh कॉन्टूर ना कि वो पास में आने से और दूर पे खड़े से पता चलता है, ऐसा करके ब्राउन कुछ लगाया है, तो मेक श्योर वो वैसा ना दिखे। ठीक है, लेट्स गो फॉर नाउ, उसमें हो गया हाईलाइटर। Let's go for highlighter. Okay, let's go for highlighter। मैंने अपना ब्रश लिया, एक्सेस को डैब ऑफ किया, एंड ब्लशर नहीं दिया ना, नहीं ये भी ब्लशर यहाँ है पास में। बोलते क्या नहीं होते, why don't you say I'm somewhere wrong, तो बोला करो। ठीक है, मैंने अपना ब्रशर किया, ग्रीन कलर उठाया, सॉरी ब्रश नंबर है 021, ब्रश नंबर बना के सबसे पहले ऐसे करते हैं।
अपना ब्लशर लिया न्यूड में, होल्ड दिस, और कभी भी ऐसे ऐसे ब्लशर नहीं लगाओगे, you will just apply blusher like this. समझ में आया? Okay, let's go for highlighter. ये दूसरे ब्रांड का ब्रश में दूसरे ब्रांड का. You can use the brush in the shade this. इसका कॉन्टूर किया 018. पहले नोज का dip, उसके बाद नोज का ब्रिज, उसके बाद मेरा चिन एरिया और प्लस यहाँ पे 018. और जैसा फोरहेड, मैं दिस cheek area. अभी जो हमने लोअर लैशेस में लोअर में पाउडर लगाया था उसको एक चीज बचती है हमारी, अगर किसी ने नोटिस किया हो. व्हाट इज आईब्रो? आईब्रो. और भी एक चीज बचती है आईब्रो के साथ. इसके अलावा और भी है मस्कारा. कितने का आईब्रो है? कितना कपड़े में चाहिए पाउडर पाउडर को कितनी टाइट आईब्रो होगा? Okay, let's fill the eyebrows. Black and brown को दोनों को मिक्स करोगे. You will mix black and brown both. Okay. Where I feel like gap, सिर्फ उस gap को fill करो. मेरे हाथ का प्रेशर कितना है? हमेशा हाथ का प्रेशर बहुत कम रहना चाहिए. आईब्रो फिल करने के बाद डायरेक्टली मस्कारा जेल मस्कारा नहीं लगाओगे, यू विल फोम इट. जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना भी तो स्प्रेड हो जाए. जेल मस्कारा इसको फिक्स करेंगे और हेयर की पोजीशन को जेल मस्कारा लिया एंड जस्ट इसको नॉर्मल मस्कारा चाहिए. ब्रश सेट के अंदर राइट. Okay, let's put on mascara. Down. The gel mascara is must. It's not must. It can. बेटा डिफरेंस बिटवीन दो ब्रशेस. इसको और वॉल्यूमाइज कर सकते हो और कर सकते हो. ठीक है, और वॉल्यूमाइज हो जाएंगे.
This is how we go for daily. Give me a mirror उधर से. Vishnu. मेरा हेयर सेट है होगा. This is how we go for our day makeup. ठीक है, इसको अभी हम लोग चेंज करेंगे नाइट मेकअप के अकॉर्डिंग. नाइट में कैसे करते हैं? इसी मेकअप को आई चेंज इट आउट एंड मेक इट नाइट. हम लोग लिपस्टिक चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत आई मेकअप चेंज करेंगे, नॉट टू मच, थोड़ा बहुत. You can make it darker also. लेकिन मैंने आज मजा लेकर बताया पॉइंट. पहले हम लोग हेयर करें या फिर नाइट मेकअप करते हैं? Let's further confusion आते हैं. Let's do that. ठीक है? देखो हेयर सीरम और ध्यान से ना अदरवाइज पैडल ब्रश. ऑलवेज जब भी क्लाइंट के हेयर को ये पैडल ब्रश, जब भी क्लाइंट के हेयर को कॉम्ब करना है, मेक श्योर पैडल ब्रश से कॉम्ब कर रहे हैं, क्योंकि पैडल ब्रश जो है वो टैंगल्स बहुत इजीली निकल जाते हैं. पैडल ब्रश. ठीक है, आज का रिश्ते कंफर्टेबल है क्योंकि अपने हाथ से उसका एक भी बार टूटेगा वो मेरे ऊपर चिल्लाएगी, उसको अपने हाथ से 10 बार तोड़. ठीक है, एक बार मैं तोड़ दूंगा खाने का ही मेरे को, लेकिन खुद से 10 बार तोड़ दे. तो मेक श्योर उससे बोलो मैं खुद करो. ये मैट्रिक्स था ना. ओके, हेयर सीरम लगाना इट्स वेरी नेसेसरी. बहुत ज्यादा जरूरी है हेयर सीरम लगाना. इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम द हीट. जो हमें हेयर स्ट्रेटनर से हीट मिलती है उसे प्रोटेक्ट करता है हेयर सीरम. ठीक है, और वो एक्स्ट्रा शाइन भी देता है आपके हेयर. मूव भी लगा सकते हैं. हेयर मूव जो बेसिक हेयर मूव का वो अलग है और हेयर सीरम का वो अलग है. व्हाट इज हेयर मूव? जो है हेयर मूव बेसिकली आपके बालों का जो टेक्सचर है ना, जो आपने अपने बालों को टेक्सचर दिया उसको मेंटेन करके रखता है, और जो हेयर सीरम है आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है. देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द मूव एंड योर दिस हेयर सीरम. नहीं, who told you? Then what's the difference between serum and oil? सीरम सीरम जो है लेंस पे लगता है. उसका स्कैल्प ऑयली होगा तो सीरम को ऑयली कर देते हैं. वहाँ पे कुछ भी. तो क्या मालूम अभी लास्ट कर रही हूँ. व्हाट? सर वो बोल रहे मेकअप फिक्स नहीं, अभी सर अभी आप चेंज करोगे ना. लगाना भूल गया. लगाना भूल गए. आप चेंज करने वाले ना. आई एम नॉट चेंज द बेस. वो बेस थोड़ा चेंज करने वाला हूँ. आई वो फिलर के बाद जेल. जो आपका हेयर स्ट्रेटनर है या फिर आपका कोई भी हेयर का मशीन है, उसका हमेशा टेम्परेचर जो है 220 जो है ना, इट्स अ प्रोफेशनल टाइमिंग. 220 इज अ प्रोफेशनल टाइमिंग. एक टाइम तक उसको 220 तक रखोगे, बट आफ्टर सम टाइम जब वो एक मैक्सिमम हीट पे आ जाएगी उसके बाद में लो कर दो. समझ में आया? 220 इज योर प्रोफेशनल टाइमिंग, बट उसको कुछ टाइम के बाद जब वो एक मैक्सिमम हीट पे आ जाएगी फिर उसको लो कर दो. समझ में आया सबको? इट भी टेल फॉर्म इधर ही होगा. सर आपके टाइल है ना. नहीं वो पैडल है. नहीं पैडल है. वेलकम बोल रहे हो. मेरे पास चलो. अभी मैंने यूज की आपको पता तभी अभी नहीं था सर आपके. Okay, let's make a section.
एक और बात, अगर आप लोग सेक्शन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन पहले सेंटर पार्टिंग लिया, उसके बाद मैंने उसको ईयर टू ईयर सेक्शन दे दिया। ईयर टू ईयर सेक्शन में अगर आप लोग अपना स्टेटिंग जो है इस साइड को भी कर रहे हो, तो आपकी जो ये वाले हेयर है इधर को रहेंगे, डोंट थिंक दैट वो इधर चले जाएंगे इधर चले जाएंगे। इफ यू वांट आपकी हेयर मूवेबल रहे इधर उधर किधर भी, उसको फिर पीछे की साइड को करो, पीछे से लेके फिर स्ट्रेटन करो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सेम प्रोसेस विद कर्ल, सेम प्रोसेस विद क्रिम्पिंग। So again, इफ यू वांट आपके हेयर इधर को मूवेबल रहे, आपने कर्ल्स के इधर को मूवेबल रहे, इधर को मूवेबल रहे, एज यू वांटेड। अगर यू वांटेड मूवेबल वाला, तो आप लोग उसको कैसे स्ट्रेट या क्रिप करोगे या कर्ल करोगे, पीछे को करके, ठीक है। इफ यू वांट आप लोग जो है अपना स्ट्रेट या कर्ल इधर को कर रहे हो, तो वो ऐसा ही सेक्शन में रखेगा, सेक्शन करेगा, डोंट थिंक दैट इधर से उठाए उधर फेंक दो। अगर ऐसे किया है तो इधर को भी चला जाएगा, इधर को भी चला जाएगा, पीछे भी आ जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वैसे मैं एक सेक्शन स्ट्रेट करके बता देता हूं। मैंने सेंटर पार्टिंग किया, उसके बाद मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया। दिस इज माय सेंटर पार्टिंग एंड दिस इज माय ईयर टू ईयर पार्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर एंड एंडिंग एट दिस ईयर इज नोन एज ईयर टू ईयर पार्टिंग। क्या बोलते हैं? ईयर टू ईयर पार्टिंग। और सेंटर पार्टिंग सही है या नहीं है वो हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? अपना वायर फॉर्म लिया या टेल फॉर्म बोलते हैं इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गए एंड जस्ट जितने जिधर के किधर के भी हैं उनको उधर पकड़ो, और उसके बाद दोनों साइड्स में से पकड़ो और स्ट्रेच करके देखो। इफ इट इज सीधा, इट्स स्ट्रेट, देन इट्स ओके। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उसमें लेवल तो जस्ट टेक इट आउट अगेन। समझ में आया सेंटर पार्टिंग कैसे क्लासिफाई करोगे? सेंटर पार्टिंग किया और दोनों साइड से उसको स्ट्रेच करके देखो। अगर दोनों से स्ट्रेच करके देखो और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देन इट्स योर सेंटर, प्रॉपर सेंटर। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इट्स नॉट योर प्रॉपर सेंटर। दोबारा से करो, ठीक है। मैंने अपना सेक्शन लिया एंड जब भी स्ट्रेटनिंग करोगे नीचे से सेक्शन को लोगे, क्योंकि जब आप ऊपर से सेक्शन लोगे, ऊपर से फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन ले लिया, इसको स्ट्रेट कर दिया, इसको दोबारा मैं इसके ऊपर फेंक दूंगा तो फिर मैस क्रिएट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। स्ट्रेट हुआ भी ना स्ट्रेट हुआ भी इक्वल हो जाएगा। सो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रेटनिंग हमेशा नीचे से सेक्शन ले रहे हो, अगर पीछे का कर रहे हो तो भी नीचे से सेक्शन ले रहे हो। अंडरस्टूड? तो हम लोग स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, तब भी नीचे से सेक्शन लेते हैं ना। सेम प्रोसेस विद हेयर स्ट्रेटनिंग, अगर हम लोग को टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तब भी हम लोग 5 सेक्शन लेंगे नीचे से। और मेक श्योर हेयर सिरप लगाया हो, हेयर सिरप नहीं होगा हेयर डैमेज होगा। स्ट्रेटनिंग करने के बाद भी लगाते हैं। ऐसा कुछ बड़ा खास नहीं है, बस थोड़ी देर देखा। ओके, मैंने लिया एक सेक्शन, उसके बाद मेरा हेयर स्ट्रेटमेंट लिया मैंने। क्लाइंट को पहले बोल दो कि अपनी हेयर को फोल्ड कर ले ताकि चट्टा ना लगे। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, पहले रूट को स्ट्रेटन करेंगे, फिर नीचे पूरी हेयर को स्ट्रेटन करेंगे। लिया मैंने लेंथ पे, उसको अच्छे से मैंने रूट से 4-5 बार किया और उसको देन आई कम बैक डाउन। अगर बालों में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो जो है थोड़ा सा भी ये धुआं निकलेगा, इट विल केम आउट, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन एक बार। स्प्रे कर सकते हैं पॉकेट से। राइट, नो स्टिक। जब भी ऐसा कुछ भी प्रोसेस करोगे कभी मत कर देना, चक्का लगेगा तो फिर वो क्लाइंट आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता वापस। सेम एक सेक्शन लोगे, मेक श्योर हर काम बहुत नीटली कर रहे हो, सेक्शन के साथ कर रहे हो। सबसे ध्यान को लेता हूँ आपके कोर्स में ज्यादा हेयर का सिलेबस नहीं है,
we will be doing हमारा curling, straightening और क्या था crimping, the hairstyling section for your the makeup looks के साथ साथ जो आप लोग सर वीडियो again एक neat section लोगे आ रहा है छोटी लड़की है वो बोलती तुम जाओ बोले मैं बुला के लाती उसको बोलो बैटरी लो गई है कैमरा ऑफ हो गया फिर बहुत सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ ऑन हो गया मेरे कैमरा गॉट ऑफ I got finished. What's the time? इस पूरे सेक्शन को एक साथ करना कर दो नहीं तो फिर सेंटर से डिवाइड कर लेंगे That's why hair are also smelling. Look at this over way. Flat. Because बालों में moisture था. कब wash किया था? समझ में आया how we do straightening? पूरे बालों में करना तो कर देते हैं. मेरे हाथ पर मेरे मसाला. मैं पूरे बालों में जाना. ठीक है? करना हो तो बाद में कर देना. ठीक है? अभी ब्रेक चाहिए या should we go for हाँ सर आपके ऊपर है half an hour अदरवाइज तो अगर नाइट मेकअप हो जाएगा तो उसका खाना खाने चल जाओ हाँ चलेगा खाना खा के फिर बैठना पड़ेगा खाना खाने के बाद सबको आलस आता है फिर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट गो ये तो आप लोग सोने का वो करोगे फिर ओके लेट्स टाई माय हेयर बैक स्ट्रेटनिंग समझ में आया हाउ टू स्ट्रेटनिंग ऑनलाइन वालों को समझ में आया यस सर। ओके Yes, sir. Good. Let's do night makeup. Same base, same all stuff. We are just going to change the eye makeup. Somewhere. Give me that Kralin ka palette. पहले just enhance lower lash line. lower में हमको काम करना है थोड़ा सा तो हमने थोड़ा सा cool colors में गया. Let's go for हल्का सा browny color. वो मैं बता देता हूँ कौन सा है. मैंने अपना पैलेट लिया तो हमने इस पैलेट Amazon से पिक दिस कलर हम लोग अब नाइट मेकअप कर रहे हैं नाइट मेकअप बेसिकली हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर के साथ जाते हैं फॉर डे मेकअप हम लोग वेरी सटल कलर के साथ जाते हैं फॉर नाइट मेकअप वी गो फॉर थोड़े से ब्राइट डार्क कलर ब्राइट कलर ओके मैंने अपना ये ब्राउन कलर उठाया एक्सेस को डैब किया विद दिस
From same family, हल्का सा darker color. But from same family, हल्का सा more darker color. अब लास्ट में हल्का सा black. ठीक है, lower lashes को मैंने dark intensify किया with the black circles. ठीक है, let's go for black also. We'll change the lip color also. Look how we changed from very softer to the glamour. ठीक है, आप ऊपर वाला कलर भी चेंज करेंगे. मैंने लिया अपना ब्रश इन द शेड 009, जो सबसे पहले शेड यूज किया था ब्राउन का, वही सेम शेड उठाया, इसको डैब अप किया और just adding a bit tinge of brown color. Black color. Last time, I look at the good difference from very soft to very sharp. समझ में आया? From बहुत soft से हम लोग कहाँ पे आ गए? बहुत sharp पे. I will change the lip color also. ठीक है? So which lip color should we go for? I feel like somewhere is brown family का. Let's go for the darker color. Okay, thanks to them. So somewhere cream है. मैंने lip color लिया from Lakme Absolute Matte Liquid Lip Color. लिया मैंने.
फुली प्राइमर भी यूज करते हैं हाँ, ठीक। whatever way you are comfortable. मैं लिप लाइनर नहीं यूज करता, मुझे वो डबल डबल काम करता है। समझ में आया? How we changed from day makeup to night makeup? This is the thing which we do in day makeup and night. Day में we go for very subtle, cool, natural things, and in the night makeup we go for very, dark, dramatic colors. मैं डार्क पसंद है इसलिए। समझ में आया? ऑनलाइन वालों को समझ में आया? और थोड़ा हाईलाइट करके तो आपको और ज्यादा हाँ कर सकते हैं, बट मैंने लिपस्टिक ज्यादा हाईलाइट करती हूँ, तो आई ज्यादा हाईलाइट करो तो वो दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को भी रखो। माना नाइट कर रहे हैं, नाइट में सब लाउड करते हैं, बट दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उनको मत भूलो। क्या कॉन्सेप्ट है? लिपस्टिक लाउड तो आई साइलेंट, आईज लाउड तो लिपस्टिक साइलेंट। कॉन्सेप्ट क्या? यही है कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना और उस चीज को भी दिमाग में रखना कि हम लोग क्या मेकअप कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनली। That's why I'm sitting here and you look at us. Right? समझ में? Dark brown somewhere. Just check it out, please. Lakme Absolute Matte Liquid Lip Color. It's brown. अरे बाबा रेड तो नंबर निकल गया। सॉरी, समझ में आया सबको? सबको क्लियर हुआ? What we had done today, day and night makeup में basically, what do you guys feel the difference in day and night? night makeup is loud. Day and night सटल ही सटल, सटल सटल मतलब बिल्कुल नाच। What do you feel the difference between day makeup and night makeup? Shant, you're not student now, you're model. Somewhere on the darker side, somewhere on the poppy side, जो चीज vibrant और pop हो गई। मैं उसके साथ वो भी यूज कर सकता था, क्रीम पाउडर टू पाउडर नाइट में ना। ठीक है? अंडरस्टूड टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन? पक्का? What's the difference between day makeup and night makeup? मुझे तो ऑनलाइन सबको समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड अपॉन आपको नाइट में भी क्रीम यूज करना तो फर्क है। आज तो कुछ खास नहीं है फर्क। क्रीम वाला जब वो हाई कवरेज देगा, लिक्विड वाला जब वो कवरेज थोड़ी सी कम देगा, कवरेज का डिफरेंस है। और किसी ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन? सर यस सर, हम अपने कंफर्ट से ब्रश यूज कर सकते हैं क्या? आप अपने या आपने comfort से क्या बताया choose कर सकते